हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Economical cases. There is a most important point here. Another important case of the revolt was the disruptions of the traditional Indian economy, and it is a subordinate of the British economy. The British had come to trade with India, but soon decided to exploit and impoverish the country, and they tried to take away as much wealth and raw material from here and they could. The British keep high posts and salaries for themselves. They use a political control to increase their trade as well as export and import of foreign goods. All men were used to be drain India of her wealth. Indian economics now suffer under the British policy. Since there is a walkout against the interest of Indian trade and industry, India is a handicraft completely collapsed. There is the India is handicraft completely collapsed, and that a craftsman who received a royal patronage were impoverished when the state were annexed. They could not be complete with the British factor made a product where machines were used. It made India into an excellent consumer of British good and a rich supply of raw material for the industry in England. The British sold the cheap machine-made cloth in India, which destroyed the Indian cottage industries. There is a destroyer for their Indian cottage industry. It also left a million of craftsmen unemployed. The British also sent raw material to England for the factories there, and this left a little for the Indian weavers. The British also imposed heavier duty on Indian made goods. Now there could be reaps of huge profit as there was no competition for their goods. Thus the British drained to Indian here of wealth and here natural resources. And what are the measures the British take to be exploit India? To buy raw materials and sell their finished goods, they introduce stamp ships and railways. The railways is open as a vast market to the British and facilitated their export of Indian raw materials aboard. The railways connected the raw material producing area with the exporting port. As a result, British goods afforded their Indian market. But you know that the railways is a play an important role in the national awakening of the country too. They let a people an idea come closer together and something that the British had never anticipated. In 1853, Dalhousie opened their first telegraph line from Calcutta to Agra, and they also introduced their postal service to India. Since land was the major source of revenue from them, the British thought of the various means to get a revenue from land. The colonial policy of intensifying land revenue demand led to a large number of peasants losing their land to revenue farmer, trader, and money lenders. And this was done through the Royatwari and Mahavari system. There is this time the two systems established here, Ratwaris and Mahavari system. The permanent settlement of Bengal, Bihar, Orissa did not recognize their heredity or right of peasant on the land. On the other hand, if you there fail to pay a 11th of the entire produce, their property could be sold off. Their property is sold off. To prevent the situation, the peasants often borrow the money from their money lender at the high rate of interest, and sometimes they even sold their property to be a money lender. Even the official horses, the peasant who
They did not seek justice at the court from a fear of further harassment. The new class of Zamindar that were created by the British become their political allies. The supported them in a time of need and acted as a buffer between the British and the people. Some of them even supported the British against the freedom movement. The economical decline of peasantries and artisans was reflected in the 12 major and numerous minor famine from 1770 to 1857. All this factory helped to be spread on anti-British feeling and which ultimately culminated in their revolt of 1857. There is important इकोनॉमिकल वैल्यू फॉर अ रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आर्थिक कारण। आखिर कौन आर्थिक कारण थे जो 1857 क्रांति का सूत्रपात किए? कहते हैं विद्रोह का एक और महत्वपूर्ण कारण था पारंपरिक भारतीय अर्थव्यवस्था का विघटन। यानी पारंपरिक भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे परंपरा के द्वारा चलाई जा रही थी कारखाने, हस्तशिल्प, उसको अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया। जैसे बुनकर होते थे, ठीक है, बनाने जो बिना मशीन के बनाए जाते थे भारत में हाथों के द्वारा, अंग्रेज़ों ने उसको बिल्कुल ही तबाह कर दिया और इसका अंग्रेजी अर्थव्यवस्था के अधीन होना पड़ा। क्योंकि अंग्रेज़ जो थे अपने माल भारत में बेचने के लिए अग्रसर थे और उनको पता था कि जब तक भारतीय चीज़ों को हम नष्ट नहीं करेंगे तब तक जो है उनका सिक्का नहीं चल सकता। तो उन्होंने जो है भारतीय पारंपरिक भारतीय अर्थव्यवस्था के विघटन बिल्कुल ही कर दिया। अंग्रेज भारत के साथ व्यापार करने के लिए आए थे, परंतु शीघ्र उन्होंने देश के शोषित करने और इसे दरिद्र बना देने का निर्णय ले लिया। उन्होंने यहाँ से इतना ज़्यादा से ज़्यादा धन और कच्चा माल जाने का प्रयास किया जितना कि उनके लिए ले जाना संभव था। यानी हर वो जो प्रबंधक उन्होंने अपनाया जो उनके लिए उचित था। सभी उच्च और अधिक वेतन वाले पद उन्होंने अपने ही आरक्षित कर लिए। अब देखिए ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण था जो त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा कहता है कि भारत में भी अगर विदेशी कंपनी आते हैं तो सभी ऊंचे और अधिक वेतन वाले पद वो अपने लिए आरक्षित कर लेंगे और फिर वही संभावनाएं बनेगी जो गुलामी की जंजीरों के लिए पर्याप्त होगा। तो कहते हैं कुछ इसी तरह जो है भारत में जो भी आता है अपनी जो है उनका पता है कि भारत में राजनीतिक नेता आपस में लड़ते रहते हैं और उनमें फूट डालना और राज्य करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो यही बात आज के राजनीतिक नेताओं को सोचना चाहिए कि हम विदेशियों को भारत में आमंत्रित न करके अपनी वस्तु पे हम आत्मनिर्भर बने और अपने चीज़ों का स्वयं ही उत्पादन करें और उसका खपत करें और जितना हो सके भारतीय वस्तु को जो है विदेशों में सप्लाई करे जिससे हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत हो। अब देखिए वहाँ पर भी यही हुआ। 1857 के अंतर्गत आर्थिक कारण भी वही बना कि सभी ऊंचे और अधिक वेतन वाले पद जो थे उन्होंने अपने लिए आरक्षित कर लिए और अपने व्यापार को बढ़ाने और विदेशी वस्तु का आयात निर्यात के लिए उन्होंने राजनीतिक नियंत्रण का भी प्रयास किया। उनको पता था कि अगर हम राजनीतिक में नियंत्रण कर लेंगे तो उनके लिए आयात निर्यात जो होगी बिल्कुल सुलभ हो जाएगी और भारत की संपदा को लूटपाट और धन निकास के लिए हर उपाय का प्रयोग उन्होंने किया। कहते हैं कुछ लोगों का मकसद ही यही होता है और ये शायद यहाँ के लोगों ने नहीं समझ पाए। कहते समझते भी तो कैसे समझते, यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो था राज्य के लिए ललायित था, तो किसी भी व्यक्ति को अपने अंडर कर लेना कहते बहुत ही आसान कार्य था। जैसे अभी के समय प्रेजेंट टाइम में कहते हमें किसवीं शताब्दी में आ गए हैं, लेकिन अब भी सत्ता के लिए राजनीतिक नेता इतने ललायित होते हैं, ये कहते हैं ऐसे ऐसे कमेंट मारते हैं जिसको सुना भी नहीं जा सकता और समझा तो जा ही नहीं सकता। तो कहते हैं जो बड़े लोग होते हैं वो सार्वजनिक नहीं होते हैं, आज निजी बन के रह गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े लोगों को सार्वजनिक बनना चाहिए, उनको अपना निजी फैसला नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो बड़े पद पे हैं और किसी राज्य को किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो ये बात शायद आज के नेता नहीं समझ रहे हैं। उनका तो सिर्फ एक ही भूख है, उनको कुर्सी चाहिए, उनको राज्य अपने अधीन चाहिए, चाहे उसके लिए वो जो मर्जी करे, जो मर्जी कदम उठाए, वो उनके लिए हर चीज़ आसान हो जाता है। अंग्रेजी नीतियों के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था को अब तक जो है झकझोर कर रख दिया, क्योंकि ये अवस्था बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि उन्होंने भारतीय व्यापार और उद्योग को नष्ट करने के लिए काम किया। इसलिए भारतीय हस्तशिल्प पूरी तरह से तहस नहस हो गई। जिन शिल्पकारों को शाही संरक्षण मिला हुआ था, उन अंग्रेजों के राज्यों के अंग्रेजी राज्य विलय के उपरांत वो अत्यंत दरिद्र हो गए। अब देखिए, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन शिल्पकारों को शाही संरक्षण यानी राजाओं का संरक्षण मिला हुआ था, राज्य छीन जाने के कारण अब शिल्पकारी नहीं रह गए, और अब जो उनको पैसे मिलते थे राजाओं के अंतर्गत, अब जो है वो दरिद्र हो गए, और वो अंग्रेजी कारखानों में बने उत्पादों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर मशीनों का प्रयोग किया जाता था। और इसे भारत अंग्रेजी जो है सामान का बहुत ही बढ़िया उपभोक्ता और इंग्लैंड के उद्योग के लिए कच्चा माल की आपूर्ति का बहुत बड़ा आपूर्तिदाता बन गया, क्योंकि भारत कच्चे माल भी देता था और उनके सामान भारत में खरीदा भी जाता था। तो इस कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है तहस नहस हो गई। अंग्रेजों द्वारा मशीनों से बुने गए सस्ते कपड़े भारत में बेचे जाते थे, क्योंकि हमें पता है कि हाथों से बुनने में बहुत समय काल लगता है, लेकिन अंग्रेजों के मशीनों में चंद सेकंड में ही कई कपड़े तैयार हो जाते थे, और ये कपड़े सस्ते भी होते थे। अब आप ही सोचिए, आप कपड़े भी अच्छे हैं और सस्ते भी हैं, और एक कपड़ा अच्छा भी है लेकिन वो महंगे हैं, तो आप किसके तरफ जाओगे? जर्नल सी बात है, हर व्यक्ति सस्ते चीज़ों की तरफ ही आकर्षित होता है। तो ऐसे ही हुआ, भारत में जो हाथों से बने कलाकारियाँ थी वो लोगों ने नकार दिया, और जो मशीनों से बनी हुई चीज़ें थी उनको उन्होंने धड़ल्ले से उपयोग करना शुरू कर दिया। इससे भारत के कुटीर उद्योग नष्ट हो गया। भारत का जो कुटीर उद्योग था तबाह हो गई, और इसके परिणाम स्वरूप लाखों शिल्पकार बेकार हो गए। अंग्रेजों ने इंग्लैंड की स्थिति रखने के लिए कच्चा माल भी यहीं से भेजा जाता था, और इससे भारतीय बुनकरों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं बचा। कहते कच्चा माल भी ले जाना और वहाँ से मैन्युफैक्चर करके दूसरा सामान भी भेजना, जर्नल सी बात है, भारतीय जो है बुनकरों के लिए कुछ भी नहीं बचा, और बिल्कुल ये बेघर हो गए। अंग्रेजों ने भारतीय सामान पर भारी कर लागू कर दिया, क्योंकि अंग्रेज का शासन था, तो उन्होंने जो भारतीय सामान होती, जो भारतीय वस्तु होती थी, उन पर उन्होंने भारी कर लगा दिया। अब देखिए, ये भी बात आता है, कोई चीज़ अभी के समय लीजिए, कोई चीज़ अगर इंडियन खरीदिए, इंडिया के सामान खरीदिए, तो उसमें भारी कर लगा होता है, और विदेशी सामान खरीदिए तो बहुत सस्ता होता है और बहुत ही कम टैक्सेस उसमें पे होती है। तो देखिए, वही कंडीशन आज भी पैदा हो रही है जो उस समय हुआ। हम अधिक से अधिक जो है विदेशी से बने हुए वस्तुओं पे ही निर्भर हैं। कहते हैं आज हर चीज़ मैन्युफैक्चर भारत में हो रहा है, हम मेड इन इंडिया देख रहे हैं, लेकिन जनरली अगर आपको ये बात पता हो कि सारे सामान जो है विदेशों से लाए जाते हैं, और ये सिर्फ भारत में असेंबल होते हैं, भारत में मैन्युफैक्चर करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। कहते हैं जब तक भारत में हर चीज़ का जो है मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट नहीं हो जाएगा, तब तक भारत जो है आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। भारत में वे अधिक लाभ कमा सकते थे, क्योंकि उनको सारे कंडीशन जो है उनके फेवर में आ गई, क्योंकि उनके सामने से प्रतिस्पर्धा के लिए अब कोई भी भारतीय उत्पाद नहीं था। अब उनके समक्ष कोई भी कंपटीशन नहीं हो सकती थी। अब इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत की संपूर्ण धन संपदा और प्राकृतिक संसाधन से इसे जो है वंचित कर दिया, यानी अपने ही देश में अपने चीज़ों से जो है अंग्रेजों ने वंचित कर दिया। तो ये नीति उनके काफ़ी कारगर सिद्ध हुए। भारत के शोषण के लिए अंग्रेजों ने और किन उपायों का प्रयोग किया, ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत का शोषण करने के लिए हर एक कदम उठाया, हर एक प्रयास किया। कच्चे माल खरीदने और अपना तैयार माल बेचने के लिए उन्होंने भाप से चलने वाले जहाज, स्टीम शिप्स और रेलवे की शुरुआत की, क्योंकि उनका सामान भारत में जो है बहुत अच्छे कीमत पे और सुचारू रूप से बेचे जा सकते थे। इसलिए उन्होंने रेल का भी विकास यहाँ पर किया, इवन कि जहाज़ों का भी जो स्टीम से चलते थे उसका उपयोग किए। रेलवे वे
अंग्रेजों के समक्ष एक बहुत बड़ा बाजार खोल दिया, क्योंकि रेलवे से बहुत मात्रा में सामान जो है यहाँ से वहाँ किया जा सकता था और भारतीय कच्चे माल को विदेश में निर्यात करना बहुत सरल बना दिया। रेलवे ने कच्चे माल का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को निर्यात करने वाले बंदरगाहों से परस्पर जोड़ दिया और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी वस्तुओं से भारतीय बाजार भर गई। यानी चारों तरफ देखा जाए तो अंग्रेजी सामान ही यहाँ पर मिल रहे थे। परंतु क्या आप जानते हैं कि रेलवे ने देश में राष्ट्रीय जागरण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने लोगों को और उनके विचारों को परस्पर नज़दीक लाने में मदद की, जिसके अंग्रेजों ने कभी कल्पना नहीं किया होगा। क्योंकि इसका अर्थ यही हुआ दोस्तों कि जैसे ही रेलवे का निर्माण हुआ, कहते आम लोग भी उसमें सफ़र करने लग गए और जो छुआछूत के भावनाओं से ग्रसित इंडिया थी, अब कई लोग जो थे आपस में बैठते थे, बातें करते थे, एक दूसरे की भावनाओं को वो समझते थे और जिसके कारण हिंदू मुस्लिम एक हो गए। और यही कारण था भारत में एकता के सूत्रपात का, क्योंकि अंग्रेज ने अपने सुविधा के लिए बेशकली रेलवे नेटवर्क का निर्माण करवाया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके रेलवे का नेटवर्क ही उनके जो है यहाँ से जाने का नेटवर्क बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे भारतीय एक हो गए, एक साथ यात्रा करने लग गए, एक दूसरे की भावनाओं को उन्होंने समझने लग गए और ये काफ़ी मदद कर दिया भारतीयों को एक साथ आने में। और देखा जाए 1853 में डलहौजी ने कलकत्ता के आगरा के लिए प्रथम टेलीग्राफिक लाइन खोली। उन्होंने भारत में डाक सेवा भी आरंभ किया, क्योंकि भूमि उनके लिए लगान वसूल का एक बहुत बड़ा स्रोत था। इसलिए अंग्रेजों ने भूमि से लगान वसूली बढ़ाने के लिए अनेक उपायों के बारे में विचार किया। भूमि लगान की मांग बढ़ने की उपनिवेशिक नीतियों के परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में किसानों से जो है लगान वसूल करने वाले जमींदार, व्यापारियों और ऋणदाताओं के हाथों अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज जैसे मर्जी वैसा कर सकते थे। इसे हम रेवाड़ी और महवाड़ी पद्धतियों के जरिए लागू किया गया। उस समय कहते बंगाल, बिहार, उड़ीसा के स्थायी व्यवस्था यानी जो सेटलमेंट में भूमि किसानों के जो आनुवंशिक उत्तराधिकारियों को मान्यता प्राप्त नहीं थी। दूसरी ओर यदि वह अपने कुल उत्पादन का 10/11 भाग जो अदा नहीं कर पाते तो उनकी संपत्ति को भी बेच दिया जाता। अब देखिए ये कितनी बड़ी जो विडंबना है, क्योंकि आपको पता है उस समय प्राकृतिक भी और जो है संसाधन की कमी के कारण खेती करना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि कई कई साल तक तो कहते हैं रेन ही नहीं होती थी और कई कई साल देखा जाए तो सूखा का प्रकोप होता था। अब इस स्थिति से बचने के लिए किसान प्रायः कर्जदाताओं से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेने लग गए। अब वो क्या करते, बीज प्राप्त करने के लिए उन्हें कर्ज लेना ही पड़ता था और यहाँ तक कि कई बार उन्होंने अपनी ज़मीन कर्जदाताओं के हाथों बेच भी दिए। तो ये कहते हैं बहुत ही उस समय दयनीय स्थिति अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के कर रखा था। और देखा जाए तो यहाँ तक कि अधिकारी भी उन किसानों को परेशान करते थे जो न्याय न मिलने के विरुद्ध और भविष्य में परेशानी किए जाने के डर से बचने के लिए अदालतों में जाते थे। यानी कहते उन्हीं की अदालत होती थी, उन्हीं के वकील होते थे, उन्हीं के जज होते थे। तो कहते आम गरीबों की कौन सुनने वाला था। अंग्रेजों द्वारा निर्मित जमींदारों का नया वर्ग उसका राजनीतिक सहयोगी बन गया। उन्होंने आवश्यकता के समय उन्हें समर्थन भी दिया और अंग्रेजों के लोगों के बीच मध्यस्थता की भूमिका भी निभाई। यहाँ तक कि कुछेकर ने तो स्वतंत्रता आंदोलन के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ भी दिया। किसानों और शिल्पियों के आर्थिक पतन की छवि 12 प्रमुख और कहते हैं 1770 से लेकर 1857 तक के अनेक छोटे छोटे अकालों में प्रदर्शित होती है और ये सभी घटकों ने अंग्रेजी विरोधी विचारधाराओं को फैलाने में सहायता की, जो कि अंत में 1857 विद्रोह के रूप में प्रफुल्लित हुई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था।